Good morning, students. In DSC 303, what we'll do, we'll go through our fourth unit, which is considered with leadership. What is leadership? First of all, we must know what is leadership. As the paper is of soft skills, we have already gone through group discussion, then communication barriers, what is effective communication, one way, two way, multiple communication, we have already gone through. Then we have discussed much more about soft skills, and now the concept is dealing with leadership, and we have already prepared emotional intelligence, which is a very important chapter. Then adaptability we have already gone through, and leadership is one of the important component in soft skills. What is leadership? If we feel like, अगर हम किंग अशोका का एग्जाम्पल लें, when he killed large number of people, और या हम हिटलर का एग्जाम्पल लें, तो they were basically killers. So killers can't be लीडर्स. उनको हम बोल तो देते हैं, हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट किलर्स एंड पीपल हु ब्रॉट ट्रेजिडी, उन लोगों को हम ज़्यादा याद रखते हैं. सो in general, if we talk about leadership, what is it? Leadership is a quality which you need to inculcate, you need to develop. How is it developed? How can we develop this very quality? We can develop this very quality when we start learning, when we start modifying our personality, when we start grooming our personality, then we come to know what leadership actually is. Leadership doesn't mean कि जैसे 50 लोगों को आपने डरा धमका के अपने साथ ले लिया, that is not a leadership. Leadership is when they'll come to you willingly. They would like to be with you, they would like to work with you, they would like to listen to you, they would like to be a part of your team, they would like to share each and everything with you which is related to the real growth of the company or real growth of the workplace of theirs. So that is true leadership. So it is an ability to affect human behavior, as some mission is given and we have to fulfill that mission. So we want to be associated with that a particular person who is having leadership quality. A leadership quality consists of a skill to convince others. We must be able to convince them. It is not like we should make them feel scared of things. We should convince them whatsoever is good, ever is good is good, whatsoever is not good is not good. It is art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. So it is a quality. मुझे कोई काम करना है, but I don't have that very skill which a person possesses. So that very person, if that very person will convince me, अगर वो मुझे convince करवा देता है, तो what will I feel like? चलो कर लो. So that is called his leadership. वो उसकी leadership है, उसने वो काम मुझसे लिया, उसमें वो quality है that I preferred कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सामने वाले को ने कर लेना है. It is about building a team to accomplish a mission in a very effective manner, with good coordination, good understanding, good communication skills. Fine. So it means gaining trust of the team. It means that the people who are with you, they rely upon you, they share things with you, they communicate with you effectively, they listen to you very effectively, they act upon your advice, and they follow whatsoever is being said. They sit together like a real leader. What does he do? A real leader makes other people very comfortable as he or she sits with the person, communicates with them, and then they conclude how to move ahead. So leading effectively means you win the trust and respect of the people, and people remain motivated. Leader is one who motivates his team. कई बार ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा. So if a true leader is there, a true leader, what does he say? कोई बात नहीं, let us try again, let us see what happens. And ट्रू लीडर है सर्टन क्वालिटीज़. वो कभी अनॉयड नहीं होता बिना वजह. वो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखेगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखेगा, मोटिवेशन ज़्यादा रहेगी, पेशेंस ज़्यादा रहेगी. सो इन दैट वे द पर्सन मूव्स अहेड इज कॉल्ड अ ट्रू लीडर. सो इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस वेरी फील्ड, सो वी नीड मैनी पीपल विद अस. सो लार्ज नंबर पीपल आर रिक्वायर्ड. वो कैसे जुड़ेंगे? आजकल तो ये है कि लोग किसी से बात नहीं करना चाहते. इफ़ यू आर ए ट्रू लीडर, पीपल वुड कम टू यू, दे विल बी इन कॉन्टैक्ट विद यू, दे विल शेयर थिंग्स विद यू, दे विल जस्ट and listen to whatsoever is being said by you, and you should have that very capability. अब किसी ने फेथ भी किया है, कोई आपकी बात भी सुन रहा है, आपको फॉलो भी कर रहा है, अब आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन लोगों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ. नेक्स्ट इज़ हाउ कैन वी बिल्ड आवर सेल्फ फॉर लीडरशिप, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लीडर हु इज़ अ ट्रू लीडर. आई डिस्कस्ड 2-3 minutes earlier back we discussed the same thing. हमने क्या डिस्कस किया कि who is a leader who has ability and capacity to make people come in contact with him or her and to work with him or her.
वो अपना 100% देता है। लीडर ये कभी नहीं बोलेगा कि चलो आज मैं रेस्ट करता हूँ, आप काम कर लो। लीडर क्या कहेगा, लेट अस डू दिस वर्क टुगेदर, इकट्ठा करते हैं। लीडर क्या करेगा, आपके स्किल्स को मैनेज करेगा। आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर टीम वर्क है, हर इंसान में अलग अलग टाइप का स्किल है, तो वो क्या करेगा, स्किल के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करेगा और हमारी एबिलिटीज़ और हमारे स्किल्स को मोस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करेगा। इफ़ बाई चांस there comes any difficulty, तो that ever remains the person, जो एक रियल लीडर होता है, he takes the entire responsibility। अगर कोई गलती होती है, कोई फेलियर है, he takes the entire responsibility and if something is flourishes, और कोई काम उसका सक्सेसफुल होता है, कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, so that very person what does he do or she do, what does he or she do, the person takes the responsibility। मतलब it becomes collective effort, it is there because of my team only। So these are the certain qualities which a leader must possess। Then other is on the spot decisions, they have to take, लीडर को on the spot decision लेने पड़ते हैं, और उसके decision कैसे होने चाहिए, वो practical होने चाहिए, impractical नहीं होने चाहिए। He should be very bold and sincere and he should have courage to talk, clear cut talk is required। लीडर को clear cut talk करना पड़ता है, because if he won't speak or she won't speak, won't go for clear cut talk, what would happen, people would take him or her for granted। लोग जो है वो क्या कुछ और समझना शुरू कर देते हैं। इफ़ a chance is given to take quick decision, one should be able to go for quick decisions and should be bold enough to face the truth। सच को सुनने और सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। उसके बाद if we take back, then Sardar Patel was the finest example। He was a real leader and a man with courage and determination। Sky is the limit if you have courage, you are well determined। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यूलिसिस के बारे में मैंने लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव शेयर्ड इट विद यू। ही वाज अ किंग हु एट द एज ऑफ 80 he preferred to be out of his house and he won many battles and when he came back people didn't recognize him, even his son failed to recognize him, only his dog was there who recognized him। So this is what we call leadership। At the age of 80 he had that very courage to lead large number of people। some of them were dead, तो उनके अर्न्स में एशेस लाए थे, और जो जिंदा लोग थे उनके साथ उन्होंने तरह तरह का जो स्ट्रगल किया था। ही डिडंट लूज हिज लीडरशिप। सो लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी जो वी इनकलकेट, वी डेवलप, वी ग्रो विद दिस क्वालिटी। सो जॉन मैक्सवेल का, सी मैक्सवेल का जो एक कोटेशन है, अ लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। Leader is one, what is the real definition of a leader? If our team needs a change, first of all leader should change himself, then he must know the way to fulfill that very project, and then he should be able to show the way to the other people who are in his team। So we must have a capability, if one wants to be a real leader, one must have a capability to win the trust of the team, keeping the team motivated and helping them to find out new things। now again we are focusing on communication skills because paper is of soft skills का पेपर है। communication skills में to speak and to speak well are two different things। एक होता है सिर्फ बात करना, एक होता है इफेक्टिवली बात करना। नॉर्मल हम बात करते हैं तो वो नॉर्मल इन्फ्लुएंस देता है, बट इफ़ यू आर स्पीकिंग अमेजिंगली गुड, लाइक आपकी वर्ड सिलेक्शन अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपके पोस्चर जेस्चर्स अच्छे हैं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, तो क्या होगा, पीपल वुड लाइक टू टॉक टू यू अगेन एंड अगेन, दे वुड लाइक टू बी इन कंटैक्ट विद यू। So effective speaking is very very important। So different characters of effective speaking are discussed here। Clarity, whatsoever you are saying it should be very clear, like your words, your pronunciation, your selection of words should be very very clear। Repetition should be avoided while you are speaking and you should use that type of a language जो कि understandable हो दूसरे के लिए। अगर आप एक गाँव वाले बुजुर्ग के साथ जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन तो फेल हो गया वहाँ पे। एक स्टूडेंट के साथ आप जो है वो डायलेक्ट यूज़ कर रहे हो जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा, वहाँ भी आपका कम्युनिकेशन फेल हो गया। So if you want to fail हो गया, if you want to communicate in a healthy way with someone, you need to talk to in the language of the person with whom you are talking to। उसकी भाषा में आपको बात करनी है। Then concept of duration is there। whatsoever is speaking, like आधे घंटे एक घंटे के लिए if you are speaking on a topic, then duration concept of duration is violated। So you have to speak for a specific time where topic should be completed and it should be people should feel interested। तो अगर आप अपना फुल मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हो, स्ट्रेच कर देते हो उसको, च्युइंगम की तरह आप स्ट्रेच कर देते हो, तो यू विल स्पॉइल द एंटायर डेलिकेसी ऑफ द टॉपिक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएवर यू आर डिस्कसिंग, यू डेफिनेटली शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट वेरी थिंग
डोंट बीट अबाउट द बुश, बेकार की जो बहस है वो नहीं करनी है. डायरेक्ट एंड इन्फॉर्मेटिव मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड बाय द लिसनर. तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है. अपीलिंग योर मैसेज शुड बी वेरी अपीलिंग. द कंटेंट ऑफ द मैसेज लाइक योर लैंग्वेज एंड योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी वेरी अपीलिंग एंड दे शुड अपील टू अस इमोशनली एंड मेंटली. जैसे कि कोरोना वाले फेज़ का जो, अगर इस फेज़ की हम बात करें, व्हेन आर laborers were moving on foot towards their home, so what did the reporter do? Reporters ने क्या किया, जिस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग की, it usually filled our eyes with tears. So the message was very appealing. वो appealing था मैसेज, तो लोगों ने हेल्प भी करी. उसके बाद ओरिएंटेशन. स्पीच कैन बिकम इफेक्टिव इफ इट इज़ लिसनर ओरिएंटेड. लिसनर के इंटरेस्ट का टॉपिक है तो लिसनर सुनेगा. उसके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं, लिसनर वोंट लिसन टू यू. तो हमारी वेवलेंथ जो है वो मैच होनी चाहिए. इफ़ वी आर यूजिंग सम टेक्निकल टर्म्स, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स को हम जनरल डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं, वी वोंट बी अंडरस्टूड बाय द लिसनर और हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. उसी तरह से इनफॉर्मल टोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल टोन आई हैव डिस्कस्ड विद यू व्हाट इज इट. इट इज़ बिल्कुल ऑफिशियल टाइप में टू द पॉइंट. और इनफॉर्मल टोन है वेर यू फील रिलैक्सड एंड यू जस्ट यूज द वोकैबुलरी ऑफ योर चॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल. जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एड्रेसिंग सेशन जो है पार्लियामेंट का बताया जाता है, वो है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. ठीक है, दैट इज़ योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर फॉर्मल स्पीच. और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव वे में अपनी बात को रख पाते हैं. सब्सटेंस मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग फोकस्ड ऑन फैक्ट्स व्हाटसोएवर यू विल डिस्कस, यू शुड हैव क्वालिटी एंड यू मस्ट बी श्योर ऑफ द कंटेंट्स बीइंग डिस्कस. सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इफेक्टिवली, व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन दीज पॉइंट्स. हमारा कंटेंट क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, लिसनर ओरिएंटेड होना चाहिए, स्ट्रेंथ जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एप्रोप्रिएट होना चाहिए. ओनली देन वी be able to produce whatsoever we want to go possess good communication skill. Now we just went for listening skills का हमने किया. Now we'll come towards your speaking skills. Speaking is very important. मैंने आपको पहले भी बताया था कि listening, speaking, reading और फिर writing का आता है, तो speaking is second most important thing. Generally you might have seen घरों में बच्चों को बोलते कोई बात नहीं बोलने दो, but it becomes their routine, it spoils their language, so it becomes very very tough to improve their language. So if we talk about speaking skills, our speaking skills should be amazingly good. We shouldn't fumble for words. We should have clear cut concept in our mind कि हमने डिस्कस क्या करना है. वी शुड स्पीक इन स्मॉल सेंटेंसेज विद ईजी वोकैबुलरी, जो सभी को समझ में आ जाए, हमें उसके साथ जो है वो उस तरह से बात करनी है. इफेक्टिव स्पीकिंग इज डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट. यू मस्ट नो. आप एक पॉइंट से शुरू हुए थे, पूरी दुनिया घूम के आपको वापस उसी पॉइंट पे आना है. अगर आप वहाँ से वेवर करते हो, भटकते हो, मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट सो वेरी इफेक्टिव. सो इफ़ यू वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन वेरी वेरी इफेक्टिव, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट एंड फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन. दो चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है. एंड whatsoever is in your mind you need to write it down. उसको लिखना है और उसके पॉइंट्स जो आपने बनाने हैं. डिलीवरी ऑफ स्पीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स you might have seen people are standing in front of the dais and they keep on shaking their leg or hand or they keep on moving here and there. It's very very negative. It leaves a negative message. तो अगर डिलीवरी ऑफ दिस स्पीच जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इट शुड बी टू गुड. द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ बहुत अच्छा होना चाहिए. उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज का आता है, उसके बाद आपका ऑल ओवर प्रेजेंटेशन आएगा. सो वाइल अ लेंथी स्पीच, अगर एक लेंथी स्पीच है, इट वुड ऑल्सो स्पॉइल द डिसेंसी ऑफ द लिसनर्स, क्योंकि वो इतना लंबा सुनना नहीं चाहते. मैक्सिमम 10 मिनट का वी गो फॉर इट, कि 10 मिनट आइडियल टाइमिंग है, वेयर वी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर लिसन टू एंड observed by the common people. So components of effective talk, if we talk of effective talk, it is a two-way process. If one is speaking continuously, other one is not responding, it is one-way talk. If one is speaking and other one is responding through body language, posture, gesture, facial expressions, even then the effective talk becomes two-way and it is easily understandable और वो समझ में भी आ जाता है. Then if you want to go for effective talk, what do you need? You definitely should have subject knowledge. आप जिस टॉपिक के बारे में बोल रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में यू मस्ट हैव डिटेल नॉलेज, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम. अगर अच्छी नॉलेज जो है उस चीज़ के बारे में नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ. ओरल कम्युनिकेशन skills should be too good. Like whatsoever is being discussed, it should be discussed in the best possible way with the easiest language and small sentences. People should be able to understand what is being said. Then listening skills, if you are a good listener, you are listening to the thing, you are absorbing thing, you are noting down points और
अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छा रखते हो, आप पीठ को सीधा रखते हो या फॉरवर्ड बेंडिंग करके आप कुछ एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते हो, यू नॉड योर हेड, योर गो फॉर आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग वेल. देन लैंग्वेज skills means you should have a good command or language and you should be able to express your views in the best possible way. तो आपको नॉलेज होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पता होनी चाहिए कि कहाँ एक वर्ड का हल्का सा आपका जो वॉवल साउंड है वो अगर आप चेंज कर देते हो तो हाउ वुड इट स्पॉइल द ग्रेस ऑफ द एंटायर वर्क और एंटायर सेंस. उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप बोलोगे वो प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एनरिच्ड विद एग्जांपल्स होना चाहिए, एंड लैंग्वेज शुड बी अमेजिंगली गुड, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड विद इट, व्हाट्सएवर यू आर राइटिंग इट शुड बी 100% क्लियर. जब आप बोलते हो तो वो चीज़ें साथ साथ में क्लियर होती जानी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि थिंग्स आर नॉट क्लियर स्टिल वी आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू द कंटेंट. तो अगर इस तरह का स्पीकिंग और लिसनिंग है तो आपको रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा. एंड अबव ऑल योर एटीट्यूड शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि जो आज आपने जो है क्या करना है, लिसनिंग स्किल्स पे काम करना है या आपने जो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है. योर नेचर शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव. ओनली देन वी विल बी एबल टू मूव अहेड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. देन 7th इज जेस्चरल कम्युनिकेशन. योर जेस्चरल कम्युनिकेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि फ्रंट फॉरवर्ड बेंडिंग होगी आपकी और आपका कई बार जो है हाथ वो चिन के ऊपर इस तरह से रहता है. जस्ट लिसन टू द थिंग, यू नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स एंड यू जस्ट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द speaker also. It gives him or her energy to speak more and express his topic in the best possible way. Next one is how can we overcome the barriers related to communication. Obviously there are large number of barriers we have already discussed in previous chapters. Introductory में हमने discuss किया था जो semantic barriers है, they are related to the use of language. So whatsoever you are using language should be clear and it should be audible and understandable. अगर आप कोई word साउथ इंडियन हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हो जिसका साउथ इंडिया में मतलब कुछ और है तो those people won't be able to receive what is being said. तो हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उनकी हमें जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए. एक चीज़ और जो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ऑडियंस को क्लियर होनी चाहिए. देन ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल बैरियर्स आर देयर लाइक इफ़ नॉइस इज़ देयर आउटसाइड, बाहर नॉइस है या फिर बाहर जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है विच इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू पीपल, दैट इज़ योर फिजिकल बैरियर. इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशनल बैरियर्स आर रिलेटेड टू रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस. लाइक एक इंसान के पास ज़बरदस्त आइडिया बट वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बॉस नहीं है, वो आइडियाज़ बॉस को ही शेयर करने हैं और उस इंसान को अपना मुंह जो है वो बंद रखना है. साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आएगा, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स. एट समटाइम्स इट हैपन समवन इज स्पीकिंग और हमें लगता है अरे इसको क्या नॉलेज है, इससे ज़्यादा तो आई नो. सो दिस टाइप ऑफ थिंग व्हेन इट ग्रोज इट इज़ योर साइकोलॉजिकल बैरियर्स. लाइक वी क्रिएट बैरियर्स वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड और हाउ इज़ इट बीइंग सेड और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. सो कल्चरल बैरियर्स, अलग अलग तरह का कल्चर होता है, अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं, अलग तरह की लैंग्वेज है और अलग तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है. सो इफ़ वी आर वर्किंग इन अ कंपनी वी नीड टू व्हाट डू वी नीड टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल विद द सेम ग्रेस एंड यू नो वार्मथ के साथ हमें सेलिब्रेट करना है. और कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट में नहीं आने चाहिए. तो These barriers can be overcome by eliminating those very causes that create them. अब उन बैरियर्स को हटाने का क्या तरीका है कि वो समस्याएं हटा दो जिससे वो बैरियर क्रिएट हो रहे हैं. सेंडर और स्पीकर का जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट्सएवर इज बीइंग यूज्ड बाय द स्पीकर वो आराम से रिसीवर को समझ में आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, जो आपका ग्रुप है वो अपनी डिस्कशन शुरू कर देंगे, दे वोंट लिसन टू यू. आफ्टर दैट ऑल फिजिकल कॉजेज कैन ऑब्स्ट्रक्ट द क्लियर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज की जो क्लियर ट्रांसमिशन है वो कैसे होनी चाहिए, फिजिकल कॉजेज को हटा के होनी चाहिए. और कभी बाहर शोर नहीं होना चाहिए. अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है वहाँ बाहर शोर नहीं होना चाहिए, किसी खाने की खुशबू नहीं आनी चाहिए और आपका माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए. इफ़ वी टॉक अबाउट प्रॉपर टाइम इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. द मैसेज शुड बी सेंट एट अ प्रॉपर टाइम. अब जैसे मैसेज है वो एक प्रॉपर टाइम पे जाना चाहिए. मान लो प्रिंसिपल सर को मीटिंग या रखनी है, किसी को भी मीटिंग रखनी है, या तो वो मीटिंग शार्प एट 10 के आसपास 11-12 बजे तक हो जाती है या फिर वो मीटिंग इवनिंग में जाती है. इवनिंग में अगर वो मीटिंग जाएगी तो व्हेन वी आर जस्ट कमिंग बैक होम तब हमें अगर मैसेज मिलता है तो व्हाट वुड बी आवर मेंटल कंडीशन. वी वोंट लाइक टू डू एनीथिंग. हम काम करना चाहेंगे नहीं, हम ये सोचेंगे कि छोड़ो पर इस चीज़ को. एंड व्हाट विल वी थिंक कि जिस तरह का जो है वो टाइमिंग है, जैसे लंच टाइम पे अगर मीटिंग रखी जाती है तो क्या होगा, पीपल वोंट लाइक टू गो.
अगर फ्री होते वक्त मीटिंग रखी गई है तो पीपल वोंट लाइक टू गो, और कोई चला भी जाता है तो उसका माइंड सेट जो है वो रिसेप्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसको वो थक चुका है पूरे दिन से, वो घर जाना चाहता है. देन स्पीकर शुड सी टू इट दैट लिसनर कैन हेयर व्हाट इज ही सेइंग. इफ स्पीकर इज सेइंग समथिंग, लिसनर आपका पूरे का पूरा रिस्पॉन्स देगा. वो आपको वो कैसे देगा? फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू. और इन्फॉर्मेशन जो शुड बी नीदर बी इनएडिक्वेट एंड ओवरलोडेड. और जितना पढ़ाया जाता है या जितना दिया जा रहा है आपको वो सफिशिएंट होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए. इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि कितना ज़्यादा जो है वो बताया गया जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा स्पीकर के एंड पे. उसके बाद एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू कम आउट विद इनोवेटिव आइडियाज़. तो वहाँ पे हमारा क्या बैरियर आता है? वहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं. इनोवेटिव आइडियाज़ तो एम्प्लॉय के पास होते हैं, बट एम्प्लॉय कान नॉट शेयर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. वो क्या बोलते हैं? चेयर के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चलेंगी. Choice of right channel of communication is very very important. If there is a class of 200 people and you are shouting in the class, it doesn't look decent. लेकिन अगर माइक या प्रॉपरली आप डिलीवर कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी डिसेंट. सेंटर, स्पीकर और रिसीवर, लिसनर शुड हैव नो प्रीजुडिसेस, प्री-कंसीव्ड आइडियाज और स्ट्रॉन्ग कल्चरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. उनके जो है वो आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए सेंडर और रिसीवर के. और इन ऑर्डर टू मेक अदर कम्युनिकेशन इफेक्टिव देयर शुड नेवर बी अ वन वे ट्रैफिक. वो तो बार बार आ रहा है कि देखो वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. अगर आप उसको वन वे ट्रैफिक बनाते हो, सिर्फ आप ही बोल रहे हो, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मीन्स योर कम्युनिकेशन इज ज़ीरो. रोल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक इन कम्युनिकेशन स्किल्स. यू नो व्हेन वी लिसन टू अ थिंग स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात सुनते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? इट ऑलवेज गिव्स अस pleasure. If we listen to a particular topic, we respond, it means that we are giving feedback. हमारा जो response है वो feedback में जाता है. और जो feedback skills हैं उनका listening से बहुत ज़्यादा concern है. Communication कंप्लीट नहीं हो सकता अगर हम लोगों के ये स्टेप्स जो है वो पूरे फॉलो नहीं हुए हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ हाउ वुड यू इवैल्यूएट इफेक्टिव स्किल्स इन कम्युनिकेशन. ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है. इफेक्टिव स्किल्स इन कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ इट? व्हाट्सएवर यू आर लिसनिंग टू, जो आपको सुनाई दे रहा है, यू हैव टू रिसीव दैट ऑल्सो, यू हैव टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ टू. जो आप सुन रहे हो उसको सुनना भी है और रिसीव भी करना है, अपने अंदर भी रखना है और लाइफ में भी अपने अप्लाई करना है. हियर अ chart is given: hearing, focusing, decoding, interpreting, evaluating and responding. So if you are listening to a particular thing, आपने एक particular sentence सुना, your focus was there, you decoded the sentence, what does it mean, that you interpret the sentence, evaluate and then response comes. आपके जो है अलग अलग steps हैं sentence के analysis में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. and effective listening is a skill like all other skills, और इसको develop करना पड़ता है. वी आर बॉर्न स्पीकर्स, जितना मर्जी बुलवा लो, लेकिन वी हैव टू बी अमेजिंगली गुड लिसनर्स. क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा है, वी आर लिसनिंग टू द थिंग, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो सीधे के सीधे हमारे सामने आ जाते हैं, विच रियली पे अस अ लॉट. तो आपको किन किन पॉइंट्स पे वर्कआउट करना है? इफ़ यू नीड गुड लिसनिंग स्किल्स, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीच जो है आपकी वो वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर फंबलिंग फॉर वर्ड्स, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, यू आर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिर आप कटिंग कर रहे हो. यूज वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू equip yourself with amazingly good vocabulary and groundwork is very important. ग्राउंड वर्क में क्या है? आपको देखना है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंसिव और मीनिंगफुल फीडबैक जो है वो रिक्वायर्ड है, कि व्हाट्स एवर इज़ बीइंग सेड बाय यू, ऑडियंस को वो समझ में आना चाहिए. तो आपकी प्रेपरेशन जो है अमेजिंगली गुड होनी चाहिए. अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए लर्नर का. अगर लर्नर एक एटीट्यूड के साथ आता है कि अरे ये क्या बताएगा, मुझे तो इससे ज़्यादा पता है, तो ही वोंट और शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्सएवर इज बीइंग सेड. देन कंसंट्रेशन, ह्यूमन माइंड इज फिकल, इट कीप्स ऑन मूविंग हेयर एंड देयर, इट हार्डली कंसंट्रेट्स. बट इफ वी कंसंट्रेट ऑन वन थिंग, देन मस्ट लिसनर being listeners, if we are concentrating on one thing, it means we are learning a lot from the person who is speaking something there. Note taking is very important. If you are listening to a thing and you are not taking notes, what would happen? थोड़ी देर के बाद जो बोलने वाला है ना, he will get exhausted, वो बेचारा परेशान हो जाएगा. Making gestural responses, you have to make gestural responses. Maintain an eye contact with the speaker, और उसके हाथ पाँव की मूवमेंट पे भी आपने नज़र रखनी है. दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो
After that, responding or giving a feedback. Listener should respond with appropriate questions at the end of the speech. जब स्पीच खत्म होती है तो लिसनर को कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है वो पुट करने हैं. कीपिंग द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इन चेक. सो वी ऑफन हैव टेंडेंसी टू इंटरप्ट व्हेन वी वांट टू शो आवर डिसएग्रीमेंट. कई बार हम इंटरप्शन करते हैं, बाधा पैदा करते हैं कि हमें कुछ बोला गया तो हमें बहुत बुरा लगा है, हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते. सो वी मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हाइल द स्पीकर इज स्पीकिंग. बीच में नहीं बोलना है, वो पॉलिटिशियंस का काम है. हम लोगों का क्या काम है? व्हेन इट इज़ आवर टर्न ओनली देन वी स्पीक. Importance of listening in communication. What is the importance of listening in communication? If we won't listen to the particular thing, we won't be able to understand. तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. So what do we need to do? We need to develop effective listening. 2-3 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं. We need good interpersonal skills. Means we should not go for misunderstanding. Concept of misunderstanding should not be there. And interpersonal relationships should be very good and healthy. When interpersonal relationships are good, we remain very comfortable. जब आपस में हमारे जो है वो communication healthy रहता है. Increase in productivity. If you are a good listener, you'll whatsoever you'll do, you'll give 100%. आप पूरे का पूरा दोगे तो उससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर भी है, एक कंसेप्ट वो आ जाएगा. बेटर फीडबैक. इफ़ गुड लिसनिंग इज़ देयर एंड इफ़ गुड लिसनिंग इज़ देयर एंड यू आर बीइंग गिवन गुड रिस्पॉन्सेज की रिस्पॉन्स अगर आपके स्टूडेंट्स के जो है वो ठीक आ रहे हैं या लिसनर के ठीक आ रहे हैं, लिसनर कैन आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. यू शुड बी रेडी विद योर बुक टू गो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर लिसनर को, ताकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें. एंड प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट वेयर देयर इज़ अ गुड लिसनिंग एंड फीडबैक. जहाँ लिसनिंग है, फीडबैक है, वहाँ पे ऑब्वियसली एनवायरनमेंट वुड बी too good. Saving of time. When listening has been good, listener is left with no doubts in her mind. Listening is good, but listener felt leaving the thing, so he left with no doubt in his mind. There remain no need for inquiries and a lot of valuable time is saved. जब आप क्या करते हो, आप किसी अच्छी चीज़ को सुनते हो, उसको अप्लाई करते हो, उसकी क्वारीज़ को हैंडल करते हो, तो ऑब्वियस है वो अच्छी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में खुद ही आ जाती है. इट सेव्स योर टाइम. सो सम ऑफ द लिसनर्स दे हैव नो डाउट्स इन देयर माइंड. दे व्हाट डू दे डू? देयर वैल्यूबल टाइम इज सेव्ड. उनका वैल्यूबल टाइम जो है वो बच जाता है. एंड बेटर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप. अगर लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो क्या होगा? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है दैट वुड बी अमेजिंगली गुड. और उस वक्त क्या होगा? मैनेजमेंट वुड लिसन टू द फेलो एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एमिकेबली. तो अगर एक स्पीकर कुछ बोल रहा है तो लिसनर को क्या करना है? उसको एक सोच लेके आना है. उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, उसका फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, अनॉयंस, झगड़ा, लड़ाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. इट सेव्स योर टाइम ऑल्सो एंड इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को तो ये इंक्रीज़ करता ही है. सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे. व्हाट यूल हैव टू डू, यूल जस्ट गो थ्रू दीज स्मॉल चैप्टर्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू. उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करती हूँ. सो गुड डे.